Hi everyone. Uh, my name is Sakshi Kumari. I have secured All India Rank 330 this year in the UPSC Civil Services examination, and I am here very grateful to the UPSC time on behalf of whom I am creating this live session for you guys to help you with the UPSC preparation. So today the format of the live session will be like that I have some questions to answer first, like my introduction and all the my strategy to other many questions of GS subjects and optional strategy and everything. So this is my third attempt. This was my third attempt, and I have got secured 330 rank. And so I belong to a small village in Bihar called Mohania. I am from Kamur district, and I have a very simple background. My father is a farmer, and my mother is a clerk working as librarian in one of the colleges. So, uh, my journey with UPSC has been incredible, I would say. It has made me a better human being, as well as it has contributed a lot to my awareness as well as my understanding of the things, broadening my perceptions, diversification of perspectives, and so many things. Yes, coming back to this, the first question is आपने prelims की तैयारी कैसे की? So prelims की तैयारी जो होती है it's very much listed. ये बहुत ही लिमिटेड तैयारी होती है. ऐसा नहीं है आपको बहुत कुछ पढ़ना है या बहुत चीज़ें करनी है. यू हैव टू रीड सम ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज. बहुत लिमिटेड किताबें हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है. बट आई फॉलोड वेयर द फॉर हिस्ट्री आई यूज्ड एक्सटेंसिव सोर्सेज like old NCERT as well as new NCERT, that of themes and introduction to the fine arts book of class 11th, as well as I followed R.S. Sharma and Satish Chandra for old and ancient and medieval history, because we have seen in recent years, past 3-4 years, medieval history, ancient history and art and culture has become very important. Other things apart from that were the spectrum which I used to read, and one more book from where some questions came, like Upinder Kaur was one of the book, but I read just the glossary to find out that some of the terms which are asked, they are very typical and they are asked, so I could keep track of them. Okay. The हिस्ट्री के लिए ये था. पॉलिटी के लिए इट्स जस्ट द लक्ष्मीकांत विच यू हैव टू डू एंड नथिंग मोर दैन दैट. उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए यू हैव टू डू शंकर आई एस, एंड दैट्स आई फील इज़ इनफ इफ़ यू आर फॉलोइंग न्यूज़ पेपर्स every day, and you are following the monthly magazine of any coaching institute if you need to follow. And for geography, NCRTs are the evergreen sources. You have to read only NCRTs. For if you want to read from class 6, okay, and 11 12 become more important. So prelims में economy is a very vast section, and the weightage of economy in prelims has increased a lot. इस साल भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, and इकोनॉमी इज़ समथिंग जो ना बहुत सोचना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है. तो प्रीलिम्स में मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी आजकल ये लगता है कि आपके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आप अगर रट्टा मार के सोचते हो कि निकल जाएगा, या फिर आप सोचते हो कि उन्हीं किताबों को मैं 5 बार पढ़ लूँ जैसे सारे टॉपर्स बोलते हैं तो निकल जाएगा, अगर आपके दिमाग में उन किताबों को एक बार ही पढ़ के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है तो आप तब भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, और अगर 5 बार पढ़ने के बाद भी नहीं बनती तो आप नहीं निकाल सकते. सो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ द कोर. प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज़, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर होती रहें कि कौन सा करंट अफेयर्स में सवाल बन रहा है, या फिर क्या रीसेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, न्यूज़पेपर से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़ते रहना चाहिए. तो ये सब प्रीलिम्स में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ द की. प्रैक्टिस करिए, बबल्स फिल करिए, वो गलती मत करिए.
सी सैट को कभी भी इग्नोर मत करिए। सी सैट में बहुत लोग आजकल जिनके अच्छे मार्क्स हैं जीएम में, जीएस में 150 140 मार्क्स हैं, उनके भी नहीं हो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज सी सैट में उनका 66 मार्क्स भी नहीं बन पा रहा है। तो मैथ्स की प्रैक्टिस आई वुड से अलॉन्ग विद जीएस आप करते रहिए, ठीक है। देर इज़ नो वे आउट ऑफ दैट। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने मेंस का एसए की कैसे तैयारी की एंड मेंस का GS1 GS2 GS3 एंड GS4 का कैसे किया, ऑप्शनल कैसे किया। तो मेंस की जर्नी प्रीलिम्स से एक स्टेप ऊपर होती है और कम्प्लीटली डिफरेंट तो नहीं कह सकते बट बहुत डिफरेंट होती है। प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं आप 5 बार रिवाइज करते हो तो आपको ये एक फीलिंग होती है कि व्हेन यू विल गेट द ऑप्शंस यू विल हैव इन फ्रंट ऑफ यू जो डेफिनेशन होते हैं या कुछ भी होता है, और फिर आपको वो दिमाग लगा के थोड़ी चीज़ें अटेम्प्ट करनी होती है। बट मेंस में आपको चीज़ों को याद करके उनको रिप्रोड्यूस करना होता है, उनको रिकॉल करके पूरा उस तरीके से वो 5 पॉइंट और फिर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। वो शॉर्ट नोट्स क्या करते हैं कि जब आप GS1 एसए का पेपर दे के आते हो तो आपके पास थोड़ा टाइम होता है, लाइक आधा दिन का टाइम होता है आपके पास। बट जब GS2 और का पेपर दे के आते हो आप, अगले दिन GS3 और GS4 आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। यू बेयरली टेन टू स्लीप, और उसके बाद भी अगर आप बहुत ओवर स्ट्रेच करोगे तो यू विल गेट 4-5 आवर्स। तो उसमें वो चीज़ें आप रिवाइज़ कैसे करोगे, इट जस्ट बिकॉज कि आपके पास उनके शॉर्ट नोट्स हैं, यू नो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिवाइज्ड। ये आपने पहले से अपनी स्ट्रैटेजी में रखा हुआ है कि मुझे ये चीज़ें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, मैं ये लास्ट मोमेंट पे इनको रिवाइज़ करूँगा। ओके। मेंस में ऐसे के लिए मैंने प्रैक्टिस की, 8 से 10 ऐसे लिखे मैंने टेस्ट सीरीज़ से। और जो चीज़ें मैंने ऐसे में इंक्लूड की वो था कि एनालिसिस करो आप PYQ की, तो आपको पता लगेगा कि जो फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं रादर दैन द GS बेस्ड और करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स। तो आपको थोड़ा सा लिटरेरी और साहित्य की भाषा में लिखना होता है। तो जिनका थोड़ा सा एथिकल टच या ह्यूमन वाला टच आ जाता है ना ऐसे में, उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। थोड़ा आप डाइवर्सिटी बढ़ाओ अपने ऐसे में डाइवर्सिटी बढ़ाओ, लाइक मेंस के सिलेबस में ही आपके पास 11 पॉइंट्स हैं, 11 डाइवर्सिटी डायमेंशंस हैं। जैसे कि पहला हिस्ट्री है, फिर सोसाइटी है, फिर ज्योग्राफी है, दैन पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, ये 11 आपके खुद ही हो जाते हैं। उसके अलावा जब आपको और चीज़ें समझ में आती हैं तो आप अपना इनोवेशन भी डाल सकते हो। कुछ पोएम्स को पढ़ो आप, कुछ खुद से लिखने की कोशिश करो। और जिनका ऐसे बहुत वीक है मैं उनको लिए ये बोलूँगी कि आप डेली किसी भी एक चीज़ को देखें या फिर कोई एक टॉपिक उठा लें और उस पर 50 to 60 वर्ड्स ज़रूर लिखें, है ना। दैट डेवलप्स द आर्ट ऑफ राइटिंग, हाउ यू राइट अ पैराग्राफ। And I did all the calculation for essay and I secured one of the highest marks in essay। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन यूँ की थी कि लेंथ ऑफ द ऐसे बहुत लोगों के लिए एक प्रॉब्लम होता है कि मैं इतना बड़ा ऐसे कैसे लिखूँगा। तो 1000 से 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो मैं डायमेंशंस को खोल खोल के 20 से 25 पॉइंट्स बनाती थी। उन 20 से 25 पॉइंट्स को एक पॉइंट को मैं 50 से 60 वर्ड का एक पैराग्राफ बना के उसको एक्सप्लेन किया, तो वो खुद ब खुद 1000 से 1200 वर्ड हो जाते थे। थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट कैसे सोच सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दूँ अगर मैं, तो हैंड्स दैट रॉक द क्रैडल रूल द वर्ल्ड पे लिखा था। और उसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल है तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा सोचा और मैंने लिखा कि जैसे अगर मैं थिंकर को एक मदर मान लूँ और उनके थॉट्स को उनका चाइल्ड मान लूँ, तो थिंकर कितने प्यार से नरिश करते हैं अपने थॉट्स को, उसमें कितने डायमेंशंस डालते हैं, कितना उसमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव, एक ग्राउंड रियलिटी को टच करके सोचते हैं। और उसके बाद वो जो थॉट्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड पे छा जाते हैं। जैसे कि द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म जो जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल ने
और एडम स्मिथ ने आगे बढ़ाया, और अभी भी वो लिबरलिज़म की पॉलिसी है जो कंटिन्यू कर रही है। और देयर वर इज सो मैनी ऑपोजिशंस जो आए, जैसे कम्युनिज़म के फॉर्म में एंड अदर कम्युनिटेरिज्म के फॉर्म में, बट वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए बिकॉज लिबरलिज़म की पॉलिसी हिट एट द कोर हार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। वो बात करती है इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में, वो बात करती है इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में। दैट इज़ वेरी फंडामेंटल थिंग, जैसा कि बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि दे आर द ट्रिनिटी ऑफ द जस्टिस, सो ट्रिनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। तो ये ऐसी बातें आप लिखोगे थोड़ा ना जीएस से हट के, रादर दैन गिविंग द डेटा पॉइंट्स जो आप जीएस के आंसर्स में लिखते हो, आप थोड़ा उसको एनालिटिकल व्यू दो। पहले आर्ग्यूमेंट दो और उसके बाद आप एग्जाम्पल दो। अभी लोग, मैं जितनी भी कॉपीज़ देखती हूँ, लोग ऐसा करते हैं कि पहले वो एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ऐसा ऐसा बताया, और उसके बाद वो एनालिसिस लिखते हैं। नो, डोंट डू दैट। ऐसा करिए कि पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स इज़ नॉट एथिक्स, एंड देन मैकियावेली ने ये क्यों बोला, फिर आप उसकी एनालिसिस करते हो, एंड देन यू गिव द एग्जाम्पल दैट वी हैव सीन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एज वन ऑफ द इमर्जिंग फिनोमिना इन इंडियन पॉलिटिक्स एज वेल। तो कहीं ना कहीं जो मैकियावेली ने जो बात बोली है कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट एथिक्स, सही है ना। तो ऐसे आप अपने आर्गूमेंट्स पेश करिए, उसके बाद उसको एग्जाम्पल से सेटिस्फाई करिए। नाउ GS1, GS2, GS3, GS4, मैंने पूरा एक साल डिवोट किया इन चारों सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने में। मैंने नोट्स यूँ बनाए कि जैसे आर्ट एंड कल्चर का कोई मेरे पास सवाल आ रहा है, लाइक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें मैंने सारे किंगडम्स को लिस्ट आउट किया, जैसे चोला एम्पायर, विजयनगर, मौर्यन एम्पायर। और फिर मैंने स्टार्ट किया कि रॉक कट आर्किटेक्चर शुरू कहाँ से हुआ। एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक एज और लोअर पैलियोलिथिक एज, जहाँ पे हमने देखा भीमबेटका में लेयर्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स हैव बीन डन। और ये चीज़ें फिर उसके बाद कंटिन्यू होती हैं, जहाँ पे कैलाश टेम्पल बनाया जाता है एलोरा में, और वो एक मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है। तो ये सब चीज़ें रॉक कट आर्किटेक्चर में आप लिख सकते हो। तो इसके ना किंगडम वाइज आप शॉर्ट नोट्स बना लो, और जब भी कोई चीज़ आए, जैसे द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है, या फिर विजयनगर एम्पायर का ही वो पूछ लेते हैं कि क्या लिटरेचर रहा है। मेंस का सिलेबस का एक एक चीज़, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक। इंडियन नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आर्ट फॉर्म्स में क्या क्या आ सकता है, आपको म्यूज़िक प्रिपेयर करना है, डांस प्रिपेयर करना है, डांसिंग प्रिपेयर करना है, हैंडीक्राफ्ट्स करना है। फिर आर्किटेक्चर में आपको क्या क्या करना है, स्कल्पचर, पॉटरी, टेम्पल आर्किटेक्चर, एवरीथिंग इट शुड बी इन नोट्स, बहुत ही छोटे छोटे। इसमें GS2 में भी बहुत करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, तो आप किसी भी कोचिंग का जो 365 करके आता है वो आप ले सकते हो, और उसके बेसिस पे आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करो। बाकी आपका जो स्टैटिक पार्ट होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो आप, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हैं, जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पे हैं, लाइक आर्टिकल 14, 21। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वॉज वेरी मच इन न्यूज़, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली न्यूज़ चल रही थी। तो ऐसे आप न्यूज़पेपर की एनालिसिस करो, खुद बैठ के सोचो। डोंट थिंक कि कोई आपको सर्व करके देगा, एवरीथिंग ऑन द प्लेटर विल नॉट बी सर्व्ड। यू आर नॉट in the stage that you will be spoon feeded at all the stages. You have to do your self assessments, and you have to understand what improvisations you can do in your answers, what improvisations you can do in your thinking, कि आप उस हिसाब से बस सिलेबस के पैटर्न पे समझो और उसको ही लिखो। 3 में भी आपको वही फॉलो करना है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अपने नोट्स बनाइए, है ना। NCERT बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत होती है। जो रिसेंट मिशंस है, लाइक क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन है, और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको फॉलो करिए। PYQs को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करके फिर उसके बाद आप बनाइए। एथिक्स में आई वुड से जो अभी इस साल मेंस दे रहे हैं उनके लिए कि आप हफ्ते का 2 दिन निकालिए,
या फिर 3 दिन निकालिए और हर रोज़ आधे घंटे में 2 केस स्टडीज़ को पूरा करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम हॉल में भी उतना ही समय होगा। केस स्टडीज़ को डिफरेंट अप्रोचेस से अप्रोच करने की कोशिश करिए और आपको ये सब मटेरियल वगैरह मिल जाएगा वहाँ पे। जो अप्रोच होना चाहिए और आप कैसे उसको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, वो यही है कि आप पूरे 6 एक साथ लेके बैठोगे, आपको हेवी लगेगा। यू डू कि 2 केस स्टडीज़ आज मैं करूँगा और 3 घंटे में ही करूँगा, सॉरी हाँ 30 मिनट्स में करूँगा, तो वैसे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। मैंने मेंस की ऑप्शनल की तैयारी कैसे की? मैंने ऑनेस्टली कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे आर्ट्स का सब्जेक्ट, हालांकि मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट लिया था क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स और आईआर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और ये इंटरेस्ट अच्छा हुआ जब मैंने उसको समझा और लिखने की कोशिश की, तो बट अंडरस्टैंडिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड राइटिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप समझ सकते हो चीज़ों को, बट जब आपको ऑप्शनल के हिसाब से लिखना होता है इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो आप बार बार उसको प्रैक्टिस करो, कैसे आप अपने नोट्स को रेप्लिकेट कर सकते हो, या फिर जो भी चीज़ें जो मार्केट से मिली है आपको, या फिर आप कोई किताब पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन आपका उस सब्जेक्ट में है, तो फिगर आउट समथिंग। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना। ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन चॉइस इंटरेस्ट पे होना चाहिए, और जब आप कंटिन्यू करो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करो। मैंने इंटरव्यू की तैयारी ऐसे ही बोल बोल के की है ना। ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आपको लोग सोचते हैं कि पढ़ना नहीं होता, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रीलिम्स, और ये एक और हायर स्टेज है। इसमें प्रीलिम्स भी काम आता है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, मेंस भी काम आता है क्योंकि आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और तीसरी चीज़ आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इफ़ यू डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर थॉट्स यू वॉन्ट बी लेफ्ट विद एनीथिंग वहाँ पे फिर तो इस चीज़ के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बार बार लोगों से बोलो, बातचीत करो, आप थोड़ा एक्सट्रोवर्टली बिहेव करो, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है तो फाइंड सम ग्रुप जो इंटरव्यू दे रहा हो, और ऐसे ग्रुप बहुत मिल जाते हैं। मैं हमेशा अकेले पढ़ना प्रेफर करती थी, बट जब लास्ट में यूँ हुआ कि मुझे ग्रुप जॉइन करना ही पड़ेगा, तो मैंने जॉइन किया और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उस चीज़ से। तो इन्होंने पूछा है आप, अब मेरे फॉलो किए हुए सोर्सेज एंड बुक लिस्ट के बारे में, वही चीज़ें मैं शुरुआत में बता चुकी हूँ, एनसीईआरटीज़ और बाकी जो 5 किताबें होती हैं वो किताबें। मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की? मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई थी, एक्चुअली प्रीलिम्स के पहले ही मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि सेक्शनल जो टॉपिक्स थे जो मैं तैयार कर रही थी, और फिर लोग बोलते हैं कि मैं रिवाइज़ कैसे करूँ बार बार, तो यू शुड हैव द नज टू all those things which you have made in notes। तो मैंने इसीलिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, क्योंकि वीकली टेस्ट होता रहेगा, तो मैं ऐसे रिवाइज़ कर करके उसको तैयार करती रहूँगी, और दैट हेल्प्ड एक्चुअली। फिर उसके बाद जब प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है ना, तो यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव डन आंसर राइटिंग, नाउ यू हैव टू जस्ट रिवाइज 3 times more or 4 times more, and then you will replicate it in the exam hall। फिर यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी जितनी चीज़ें हैं ना सब बेकार हैं, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी कुछ भी काम नहीं आता। यू डू एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज़, यू डू एवरी टाइम वो टॉपिक वाइज एनालिसिस करो कि किस टॉपिक से कितना सवाल आता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, बट छोड़ के कोई टॉपिक नहीं जाना है। कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एनालिसिस आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है, उनको बहुत फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी जब बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल है इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि जब आप टॉपिक छोड़ के जाओगे उससे सवाल वो पूछ देंगे, और लास्ट में बहुत सालों से नहीं पूछा और अभी पूछ देंगे, आप कहोगे अनप्रेडिक्टेबल हो गया। तो इसलिए सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाओ, लिव नथिंग फॉर योर हार्म। ओके, यूपीएससी में प्रीवियस ईयर, ओके, एनालिसिस कैसे करें? एनालिसिस वही मैं बोल रही हूँ, टॉपिक वाइज करो, सिलेबस सामने रखो, पीवाईक्यू सामने रखो। एक सब्जेक्ट मान लो तुमने ज्योग्राफी का स्टार्ट किया, यू स्टार्ट विद द नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड, तो उसमें आप देखो पेट्रोलियम के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा है, आयरन ओर के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा है, कोल के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये चीज़ें तो कोर हैं, उनको आपको पढ़ना ही है, उनको बिल्कुल ध्यान से रखना है। हिमालयन और
वेस्टर्न घाट के लैंडस्लाइड्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये वो 3 से 4 बार पूछ चुके हैं, 2005 में, 2013 में, 2016 में और फिर 2021 में भी। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक क्या है और आपको कैसे पिक करना है, एनालिसिस कैसे करनी है। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, आप अगर खुद से पढ़ सकते हो तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट नहीं है कोचिंग, ठीक है। मैंने पहले अटेम्प्ट में अपना सेल्फ प्रिपरेशन से किया था और मेरे 70 मार्क्स बन रहे थे प्रीलिम्स में। तब मुझे लगा कि थोड़ा अगर मुझे कैटलिस्ट करना है अपने, मतलब कोचिंग को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी मुझे, ताकि मेरी जर्नी थोड़ी फास्ट हो जाए। और सेल्फ प्रिपरेशन से क्या होता है, यू लैक अ लिटिल गाइडेंस, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं ना, जो यूपीएससी में स्पेसिफिक हैं, जो पता चलनी चाहिए। बट थ्रू दिस वीडियो आई थिंक आई वुड मेक श्योर कि मैं चीज़ें बता सकूं। बट आपके पास अगर फिनेंशियल अफोर्डेबिलिटी है कोचिंग्स की, आप ज्वाइन करो। अगर नहीं है, यू हैव गुड यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स और उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो, नो इश्यूज़। और आखिर लास्ट में यार खुद को सबको खुद से ही पढ़ना होता है, बट इट्स जस्ट दैट कि हमें थोड़ा फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि सब कोचिंग कर रहे हैं, मैं कोचिंग नहीं करूँगा, पता नहीं मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, ये वाली स्थिति होती है। तो यूपीएससी में टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेज पे आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो। यूपीएससी में एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इससे ही होता है। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू पढ़िए ही पढ़िए डेली एडिशन, और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन आता है, वो दिखाता है कि किसी टॉपिक की इम्पोर्टेंस कितनी है करंट अफेयर्स में। खासकर अभी जो चल रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश में, तो फ्रेजाइल इकोसिस्टम, फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम इज़ बीइंग क्रिएटेड, व्हाट आर द रीजंस, उसके इम्पैक्ट क्या है, उसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, उस पर एक आया हुआ था, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वो सब चीज़ें आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि दे आर समवेयर रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, तो वो आपको पता होनी चाहिए। अब वो डायरेक्टली नहीं पूछता है अगर एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली एज एग्ज़ाम्पल उनका डेटा, वो रिपोर्ट कोट कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, मंथली मैगजीन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी की तैयारी के लिए कितने ईयर्स का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, 2 साल के लग जाते हैं यार, क्योंकि ना हमने प्रीलिम्स की एनालिसिस करने के बाद देखा कि 2-2 साल पीछे के भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपने फॉलो किया ही होगा, है ना। अगर आप न्यू कमर हो तो ये मत करना कि 1 साल पहले का न्यूज़पेपर निकाल के और स्टडी करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने जिस दिन से तैयारी शुरू की है, आप उस दिन से अपना न्यूज़पेपर उठाइए और पढ़ना शुरू करिए, बट स्टार्ट योर न्यूज़पेपर अलॉन्ग कीपिंग योर सिलेबस ऑन द टेबल। सिलेबस का जब आप पार्ट देखोगे, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कोई न्यूज़ आएगी, तब आपको पता है कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब किसी की, मतलब लाइक कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है या फिर, तो उसमें से आपको निकालना पड़ेगा। लाइक पॉलिटिकल न्यूज़ है कि फ्लोर टेस्ट हो रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, अभी जैसे महाराष्ट्र क्राइसिस बहुत चल रहा था, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने सुना, आपने ये वर्ड कभी सुना ही नहीं था, देन यू नीड टू एक्सप्लोर कि ये क्या होता है। फिर उसके बाद आपकी ना जो यूपीएससी, इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर, इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। आपने अगर सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो क्यूरियोसिटी से करो, अदरवाइज़ जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी होती है उनको वो ऑर्डर वाइज पढ़ाई देते हैं कि इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। लेकिन अगर आपने सेल्फ प्रिपरेशन शुरू की है तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू सी ईच एंड एवरी वर्ड कि इस वर्ड का भी मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ओके, न्यूज़पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, है ना। एवरी एडमिनिस्ट्रेटर, इवन व्हेन आई वेंट फॉर इंटरव्यूज़, तो वहाँ जब यूपीएससी हॉल में हम जाते हैं, दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई होप ऑल ऑफ यू रीच दैट स्टेज एंड सी हाउ मैग्निफिसेंट दैट यूपीएससी धौलपुर हाउस इज। वहाँ का वाइब ही अलग होता है। तो वहाँ जब मैं गई, हमारे टेबल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारी चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे 5 न्यूज़पेपर रखे हुए थे टेबल पे। व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ अस कि हम हिंदुस्तान भी पढ़ें, हम इंडियन एक्सप्रेस, फिनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब कुछ रखा हुआ था।
तो हमने बारी बारी सारे कैंडिडेट्स ने एक एक न्यूज़पेपर उठाया और सबने देखा कि उस दिन का न्यूज़ क्या है। आप समझ लो कि क्या इंपॉर्टेंस है, वो 5 न्यूज़पेपर उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, आपने कौन कौन से न्यूज़पेपर फॉलो किए मैंने बता दिया, न्यूज़पेपर कैसे पढ़े वो भी बता दिया, सिलेबस के हिसाब से पढ़ें। यूपीएससी में मैगजीन्स इंपॉर्टेंट हैं, हाँ इंपॉर्टेंट हैं। योजना और कुरुक्षेत्र का कुछ ऐसा आता है ना, जैसे बजट का योजना आती है, वो आप पढ़ सकते हो। रूरल डेवलपमेंट पे कभी कुरुक्षेत्र आ जाता है तो पढ़ सकते हो। बट ये रख लो, पढ़ लो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंडेटरी ही है पढ़ना। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आप ऐसे में लिख सकते हो, कुछ डेटा ऐसा होता है जो आप जीएस में लिख सकते हो, बट उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मुझे बहुत नहीं लगा, क्योंकि व्हेन many institutes are serving the data and everything on the platter, why should you go for exploring more things? बट हाँ, लिटरेचर के हिसाब से मतलब जब ऐसे लिखना होता है ना, तो योजना वाली लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। वो तो मैंने उसको यूज़ किया था इंटरव्यू के टाइम पे, मैंने योजना बहुत पढ़ी थी ताकि मैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की लैंग्वेज में बात कर सकूँ। तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे वो बोलते हैं कि वी कैन यूज़ द फिनटेक रेवोल्यूशन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड वी कैन ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटल इंडिया एंड ऑल दैट। तो वो बड़ी बड़ी बातें उसमें लिखते हैं। जीएस पेपर्स में आप नहीं लिख सकते, बट हाँ ऐसे के पेपर्स में लिख सकते हैं। मैगज़ीन्स को फॉलो किया, ठीक है। मैगज़ीन्स कैसे पढ़ें हाँ, मैगज़ीन्स कैसे पढ़ें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यार आप एक मंथ की मैगज़ीन लेते हो और आप उसको लेके बैठ जाते हो कि 3-4 दिन और 5 दिन में मेरे को मैगज़ीन ख़त्म करनी है। डोंट गो लाइक दैट। आपने जो सब्जेक्ट, मान लीजिए आपने मंथली, वीकली और डे प्लान बनाया हुआ है, तो आपकी वीक में होगा ना कि इस वीक में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा। या फिर आप सोचते हो कि आप 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे एक वीक में। मान लो आपने पॉलिटी और इकोनॉमी शुरू किया, तो उस महीने में आप उस वीक में पॉलिटी वाला पार्ट करंट अफेयर्स का और इकोनॉमी वाला पार्ट करंट अफेयर्स का डेली 3-4 टॉपिक 1 घंटे में देख लिया, है ना, कर रहे हैं। उसको क्रैम नहीं करना होता है। द मेन्स 365 और एनी अदर न्यूज़ पेपर मैगज़ीन, इट नीड नॉट टू बी क्रैम्ड, बट हाँ आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। और लास्ट में जब आप उसको पढ़ते हो ना, तो आपको पता चलता है कि न्यूज़पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे जो आप बार बार फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जैसे राइट टू प्राइवेसी था, उसमें पुट्टा स्वामी केस हमेशा वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, तो वो करते रहते थे। अभी पॉलिटी में वो इम्पॉर्टेंट चल रहा था, सेडिशन केसेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। जब अभी और भी सारे टॉपिक्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप वो देख सकते हो। आपने यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरुआत कब की? मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही शुरुआत की थी, और बट मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना अपने ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं क्लियर था कि मैं यूपीएससी ही करना चाहती हूँ। तो उसके बाद मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया 6-7 महीने। फिर मैंने 2018 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की, वहाँ 1 साल का कोर्स हुआ। उसके बाद मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया, तो मेरा इंटरव्यू तक हुआ वो प्रोसेस। और मैं इंटरव्यू में जाके मेरे 10 मार्क्स कम रह गए, क्योंकि मैंने मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं की थी। मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने टेस्ट सीरीज़ टाइम पे नहीं ज्वाइन की थी, और बहुत अंडर कॉन्फिडेंट भी थी कि पता नहीं प्रीलिम्स ही होगा या नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस तो अपना कभी भी मत खोना, चाहे हो ना हो, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है। बट आप अगर कॉन्फिडेंस खो दोगे ना, जो चीज़ अच्छी चीज़ आपके पास आने वाली भी होगी ना, वो भी आपसे दूर चली जाती है। मैंने तो ये देखा। फिर उसके बाद अगले साल मैंने 2020 का अटेम्प्ट ड्रॉप किया, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैं नहीं कर पाई। एंड 2021 में फिर मैंने वो टाइम पूरा कोरोना का यूटिलाइज़ किया और अपना बेस्ट देने की कोशिश की। अपना बेस्ट भी मतलब, फिर रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा तो ऑब्वियसली खुशी हुई। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। जिनके पास ग्रेजुएशन से ही करने का मौका होता है, ऑब्वियसली यू शुड डू दैट। जिनके पास 11th क्लास से ही वो दिमाग में बन जाता है कि हमें यही करना है, तो वो 11th क्लास 12th क्लास की एनसीईआरटी उसी टाइम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि आपको अभी उसमें माथा ना खपाना पड़े ज़्यादा।
फिर उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, मेंस की टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें जॉइन कर लेनी चाहिए ताकि आपका पहला अटेम्प्ट हो जाए, सेकंड अटेम्प्ट में ही हो जाए, है ना। मोस्ट ऑफ़ द डीयू के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ से स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट भी वही है जो यहाँ पे हमें एग्ज़ाम्स में पढ़ना है। बट आई वुड से कि आप अपने ग्रेजुएशन के साथ जो आर्ट्स से हैं वो सी सैट की भी तैयारी साथ में करते रहेंगे। तो सी सैट फंसता है ना तो बहुत बुरा लगता है यार, इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर और आप इतने अच्छे मार्क्स ला के जी में और सी सैट में रह रहे हो। इंजीनियर्स का कभी सी सैट नहीं रुकता, वो जी के लिए परेशान होते हैं और उनके साथ ऐसा, तो दोनों को बैलेंस करके चलो आप दोनों, इंजीनियर्स एंड द आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले, साइंस एंड आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले का भी वही बोलूँगी। फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कौन सा चूज़ करें, इन विच एवर मीडियम यू फाइंड कंफर्टेबल यू शुड चूज़ दैट मीडियम। और ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट सही नहीं आता और बहुत सारी चीज़ें ऐसी वैसी। मैंने यार बहुत सारे लोगों को हिंदी मीडियम से देखा है सक्सेसफुल होते हुए। मेरे लाइब्रेरी के जस्ट बगल में हिंदी मीडियम का एक मेरा दोस्त था, वो पढ़ता था एंड ही हैज़ गॉट रैंक सम 300 एंड समथिंग और वो आईपीएस भी बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा अच्छी रैंक आती, हिंदी मीडियम से कम आती है। आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ की, जल्दी जल्दी लिखने की, बढ़िया लिखने की, तो और रिसोर्सेज की कमी अब नहीं है। आप यूट्यूब चैनल्स खोलोगे, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं। नाउ यूपीएससी के लिए सोशल मीडिया, मैंने सोशल मीडिया बंद किया हुआ था। मुझे व्हाट्सएप मैंने इंटरव्यू के टाइम पे बनाया जब मुझे ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने थे। अदरवाइज़ आई यूज़ टू हैव टेलीग्राम। टेलीग्राम पे कुछ यूज़फुल चैनल्स होते हैं जो मैंने ज्वाइन कर रखे थे, और टेलीग्राम से मुझे याद आया कि मैंने भी अपना एक चैनल बनाया हुआ है जिस पे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और मैंने बाकी बहुत सारी चीज़ें भी, जो कुछ पीएसआईआर के टॉपर्स हैं या फिर जो मेरा एसए के टॉप मार्क्स वाले पेपर्स हैं वो मैंने डाले हुए हैं, जीएस के ज्योग्राफी के मैप्स डाले हुए हैं, और बाकी जो आप रिक्वेस्ट करोगे मैं उस पर डाल सकती हूँ, तो आप देख लेना। इट्स साक्षी कुमारी AIR 330 GS एंड PSIR। ओके, नाउ यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन, इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू कि आप ऑफलाइन करना चाहते हो। देखो, कोविड के पहले थिंग्स वेयर लाइक कि आपको ऑफलाइन ही करना पड़ता था बिकॉज ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल नहीं होती थी। बट आफ्टर पैंडमिक हैड ब्रॉट समथिंग गुड दैट यू हैव एडुटेक नाउ टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री ऑलमोस्ट। तो आप अगर कोई भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लेते हो कोचिंग से, या फिर ऑनलाइन मटेरियल्स ही फॉलो करते हो जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं यूट्यूब पे, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। बाकी न्यूज़पेपर अवेलेबिलिटी भी हो जाती है इंटरनेट के थ्रू। और बाकी जो रिसोर्सेज हैं, अगर आप बुक्स के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो आप बुक्स मंगा लो घर पे। आप ये देखो कि आपके घर पे पढ़ने का माहौल है कि नहीं। मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। आई हैव 30 मेम्बर्स इन माई फैमिली, 30 मेम्बर्स। हाउ कैन समवन स्टडी विथ 30 पीपल इन द हाउस ना, नो। तो आई हैव टू कम टू द लाइक सम अदर प्लेस, तो आई केम टू डेली। इफ़ यू हैव आइसोलेशन एट योर होम यू कैन कंटिन्यू विथ, मतलब you can continue your study there. But if you don't find the environment compatible with your studies, तो आप बाहर निकल जाओ, इट विल बी बेटर, है ना। सी द डिमांड ऑफ द सर्कमस्टांसिस और उसके हिसाब से आप काम करो। नाउ यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी, मैंने बता दिया। सिलेबस समझ नहीं आता तो क्या करें, सिलेबस समझ में नहीं आएगा तो यूपीएससी नहीं निकलेगा। सिलेबस को देखो, अब क्या 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 एनालॉजी दूँ मैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो समझ में नहीं आती हैं। कुछ लड़कों को लड़कियां समझ नहीं आती हैं, कुछ लोगों को साहित्य समझ नहीं आता है। लेकिन अगर आपने ठाना है कि नहीं, अब जो भी है यही है, इसी के साथ सब कुछ करना है, तो आपको समझना ही पड़ेगा।
तो उसको दिन रात लेके बैठो, ठीक है, 10-12 घंटे की पढ़ाई करो और ब्रेक्स भी लो, ठीक है, ताकि दिमाग आपका फ्रेश होता रहे। बस ये इंश्योर करना अपने सेल्फ असेसमेंट से, टॉपर्स की बातों से, कि आपकी जो जर्नी है वो स्मूथ चल रही है, आप ठीक से कर पा रहे हो, है ना, आप जो कर रहे हो वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। इसका सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अ, मुझे मैं जैसे ही कोई मुझे बोलता था ना, चलो आज बाहर खाना खाते हैं या पार्टी कर लेते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फीलिंग आती थी। लगता था कि यार वो 2-3 घंटे ना जो वहाँ मैं वेस्ट करूँगी, उससे अच्छा है मैं 1 घंटे यहाँ म्यूज़िक सुन लूँ या फिर कोई अपने इंटरेस्ट की या हॉबी की चीज़ कर लूँ और उसके बाद मैं 2 घंटे पढ़ाई कर लूँ। दैट विल बी अ बेटर सोल्यूशन फॉर मी। मेरा इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और मेरा बैलेंस भी रहेगा, स्टडी अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट। अभी आप बाहर जाओगे पार्टी, आधे घंटे जाने में, 3 घंटा फिर पार्टी, फिर आधे घंटे आने में, उसके बाद फिर आप वहाँ की वाइब्स में रहते हो वो। तो इन चीज़ों से ना थोड़ा सा कट होना पड़ेगा आपको, फैमिली से, फ्रेंड्स से थोड़ा सा कट आउट होके, और अपने स्टडीज़ पे 1-2 साल 3 साल जितना भी टाइम लग जाए ध्यान दे दो, है ना। दैट विल बी बेटर फॉर यू। एंड नाउ आफ्टर बीइंग ऑफिसर आई कैन फील, तब जो चार्म आपके अंदर खुद आता है और जो रिस्पेक्ट आपको सोसाइटी से मिलती है, वो दैट इज़ समथिंग वेरी ग्रेटफुल यार। वो फीलिंग जो है ना, जो अभी आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो और आप इंजॉय करने की डिज़ायर रखते हो, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यू विल हैव टू वर्क हार्ड। उसके लिए हम सब ने बहुत मेहनत की है, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, सब मिलके डिस्कस करते हैं। और आप लोग भी बहुत अच्छे से करो, पूरा मन जी जान सब कुछ लगा के। मैप समझ नहीं आते हैं तो क्या करें, मैप समझ नहीं आते तो आपको वही करना है जो आपने सिलेबस के साथ किया। अपने घर को, पूरे दीवार को मैप से ढक दो, वर्ल्ड मैप लगाओ, फिज़िकल मैप लगाओ इंडिया का, और पॉलिटिकल मैप लगाओ इंडिया का, और उस पर काम करने की रोज़ देखो उनको। सुबह उठो ना तो फर्स्ट जो चीज़ दिखनी चाहिए आपको बेड से उठने के बाद, वो मैप्स ही दिखने चाहिए, तब आप बेटर तरीके से उसको कर पाओगे। और फाइनली मैं अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहूँगी, बस ये है यार, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, अपना कॉन्फिडेंस कभी मत लूज़ होने देना। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स मिले जो अभी सेलेक्टेड हैं और उनके कुछ रिलेटिव्स में ने ऐसी बातें बोली हैं, या फिर उनके खुद के पेरेंट्स ने ऐसी बातें बोली हैं। मेरे मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ, क्योंकि मैं गांव से हूँ, फीमेल हूँ, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट से पहली ऑफिसर हूँ, जो मतलब पहली लड़की हूँ जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। तो इसके पीछे बहुत स्ट्रगल्स भी होते हैं। आपको हर टाइम कुछ ना कुछ ताना सुनना पड़ता है कि एज हो रही है, कि मतलब शायद ही निकल पाए, पता नहीं इतना टफ एग्ज़ाम है, सबसे थोड़ी निकल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एट द एंड आपका निकल जाता है, इट्स वेरी गुड, बट आपका अगर नहीं निकलता है, यू विल समवेयर सेटल बेटर एट एनी प्लेस दैन दोज पीपल हु आर टॉन्टिंग यू। ओके, सो हमेशा ध्यान रखना, डोंट गो बाई द कमेंट्स यू गेट फ्रॉम द सोसाइटी, जस्ट सी योर इंडिविजुअलिटी, नरिश इट, पॉलिश इट every time that you possess the quality of an administrator। मैं जितने भी एस्पिरेंट हैं मैं उनको यही बोलती हूँ कि जब आप यूपीएससी के लायक हो जाओगे, वो खुद आके तुमको लेके जाएंगे। जब आप होगा ना कि आप प्रीलिम्स भी कर पा रहे हो, आप मेंस भी कर पा रहे हो, इंटरव्यू तक जब आप पहुँचते हो, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ लक। जब उनको लगता है ना कि ये बंदा तो आना ही चाहिए, तो मेंस में अगर आपके थोड़े कम मार्क्स भी होते हैं ना, वो आपको इंटरव्यू में इतना मार्क्स देते हैं कि यू विल मेक टू द लिस्ट। तो अपनी पर्सनालिटी को वैसे पॉलिश करो, यू विजुअलाइज योर सेल्फ एवरी डे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। सुबह वैसे ही चाय लो और चाय के साथ न्यूज़पेपर लो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। तुम थोड़ा सा ये सोचो कि जब ये पॉलिसी बन रही है, आत्मनिर्भर भारत बनी है, तो इसमें अगर मैं होता तो मैं और क्या चीज़ें ऐड कर सकता था। इससे जब आप सोचते हो ना, तब आपके इनोवेटिव पॉइंट्स बनते हैं, तब आपके मेंस के लिए अच्छे कंक्लूजन्स बनते हैं। तो इस तरीके से अपना सोचने का ढंग बदलो, है ना। वॉट एवर क्रैप यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, जस्ट किक इट आउट, और अच्छे से अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छा पढ़ो। कुछ ऐसी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जैसे कि इग्नाइटेड माइंड्स बाय एपीजे अब्दुल कलाम।
उन्होंने पूरा विज़न दिया हुआ है, इंडिया 2020 का जो विज़न दिया हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम ने, आप उसको पढ़ो, आप समझ में आएगा कि बड़े लीडर्स जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और कितने अच्छे से जब वो प्रेसिडेंट बने उन्होंने कितने अच्छे से अपने रोल को अदा किया है। तो जस्ट सी, गेट मोटिवेटेड एंड ट्राई टू बिकम लाइक देम एंड जस्ट गो one step farther than them, okay? But continue your journey, don't get demotivated and all the best to everyone from my side. तो अभी मैं चैट्स देख लेती हूँ आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। मैम आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, मेरा ऑप्शनल। कोचिंग नोट्स में जो सिलेबस में है वो नहीं है या उसके अलावा भी था? अच्छा, कोचिंग नोट्स में क्या क्या होता है? ओके, देखो कोचिंग नोट्स में जो भी मिल रहा है वो सिलेबस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, ठीक है। आप ट्राई करो कि आप कोरिलेशन बना पाओ उसमें, और अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है जो आपको चाहिए थी तो आप उसको मतलब यूट्यूब से देख लो, गूगल कर लो, है ना। बहुत सारे आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हैं जिन्होंने अपने पेजेस पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाएं? देखो शॉर्ट नोट्स के लिए क्या होता है, एक टॉपिक को मैं एक A4 साइज़ पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करती थी, और यहाँ पे एक टॉपिक का नोट्स बनाया, यहाँ पे एक टॉपिक का नोट्स बनाया, तो ऐसे 4 टॉपिक जो होते थे मेरे एक A4 साइज़ शीट में कवर हो जाते थे। तो उसमें मैं मेजर क्या करती थी, किसी चीज़ का डेफिनेशन है या कोई एक्ट है तो उसके बारे में पहले मैंने एक्सप्लेन किया, जिसको मैं इंट्रो में लिखूँगी। फिर रीज़न्स होते तो मैंने उनको पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स लिख लिए मैंने रीज़न्स। फिर इम्पैक्ट क्या है उसके 5 पॉइंट्स लिख लिए। फिर वे अहेड क्या होना चाहिए उसके 5 पॉइंट्स लिख लिए। कुछ कंक्लूज़न है तो उसको मैंने एक लाइन में बढ़िया सा लिखा, और वो मेरा मेंस का एक पूरा चीज़ तैयार हो गई। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसा आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे वैसे ही आप आंसर भी लिखोगे। सो ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स लाइक दैट, कि आप यही चीज़ मेंस में रेप्लिकेट करोगे। ओके मैम, सिर्फ करंट अफेयर्स एनालिसिस देख लें तो शॉर्टकट अगर आप करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि इट विल वर्क। थोड़ा कोशिश करो कि आप मेहनत करो, ठीक है। जो बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं ना, उसको आप फीड करोगे दिमाग में, कुछ इनोवेशन नहीं आ पाएगा, थिंकिंग नहीं हो पाएगी, और वही चीज़ बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, एनालिसिस इज़ समथिंग विच यू डू इन योर माइंड, ओके, दैट नीड्स टू बी डन। सो किसी का कुछ देखो नहीं, बस अपना थोड़ा। आपको आईएएस मिला है क्या बेटा? अभी सर्विस एलोकेशन हुआ नहीं है। सो मुझे आईएएस और आईपीएस दोनों मिलने के चांसेस हैं। और मैम बिना कोचिंग मैगजीन काम चलेगा अगर मैं ओनली आईएएस के एडिटोरियल डिस्कशन और प्रीलिम्स बूस्टर से नोट्स बना रहा हूँ? एक्चुअली प्रीलिम्स बूस्टर जितना मैंने देखा हुआ है वो डेली होता है और बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए, तो उसके नोट्स ना बनाओ। बेटर यू सॉल्व सम एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन दैट, ताकि वो थोड़ा रिवाइज हो जाए। और एडिटोरियल डिस्कशन से नहीं, आपको एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा एनालिटिकल थिंकिंग के लिए। और हिस्ट्री कैसे कवर करें? हिस्ट्री कवर करने के लिए यू हैव टू कवर योर एनसीईआरटीज़, और जो स्पेक्ट्रम की किताब है आर एस शर्मा एंड सतीश चंद्र, वो काफ़ी होगी, ठीक है। और थीम्स की जो किताबें हैं वो पढ़ लो, दे आर वे बेटर। एंड मैम प्लीज़ पीएसआईआर की कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए। देखिए हाँ, पीएसआईआर के लिए सेक्शन 2 पेपर्स हैं, उनमें 2 सेक्शंस हैं, जिसका सेक्शन ए जो होता है मोस्टली स्टैटिक होता है, और सेक्शन बी डायनेमिक होता है। पेपर 2 में भी आईआर का जो पार्ट है उसमें भी सेक्शन ए जो है वो थोड़ा स्टैटिक है और पेपर 2 डायनेमिक है। तो जब आप अप्रोच करो तो सेक्शन ए से स्टार्ट करो। मान लो आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट किया, फिर आपने थ्योरीज ऑफ स्टेट पढ़ा, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए। उसके बाद आप आओ पेपर 2 पे। फिर पेपर 2 पे थोड़ा जो ऊपर थिंकर्स डाले थे और जो थ्योरीज पढ़ी थी आपने, उनको नीचे के आंसर्स के एनालिसिस में आप यूज़ करो, ताकि ना वो जीएस का आंसर ना बन जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड फॉर बेटर क्लैरिटी आई वुड सजेस्ट कि आप टॉपर्स, जो पीएसआईआर टॉपर्स हैं, उनकी कॉपीज़ देखो। वो बेटर तरीके से आपको जो रिप्रेजेंट करके बताते हैं, तो आप समझ पाओगे कि आपको कैसे लिखना है, कैसे आपके नोट्स बनाने हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है।
PSIR सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन बी इज़ ऑल्सो वेरी डायनेमिक, तो उसमें भी आपको हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो अप करना है, ठीक है। आपके पास इन सारे सेक्शंस के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जैसे इंडिया वियतनाम रिलेशंस है या इंडिया USA रिलेशंस है, तो आपके पास नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए कि आप इंट्रो में क्या लिखोगे अगर इंडिया US आया तो, कि the India-US relations has stood above the hesitations of the past. Like पहले USA was not in our cooperation but now they are cooperating with us. फिर उसके reasons बताओ कि कहाँ कहाँ cooperation हो रहे, areas of cooperation क्या है। फिर उसके बाद आप बताओ कि क्या क्या problems भी generate हो सकती हैं India-US relations में। And then you come to the thinkers कि थोड़ी सी थिंकर की एनालिटिक्स जो होती हैं वो डालो कि सी राजा मोहन ने क्या कहा है इस चीज़ों के बारे में। और फिर और भी थिंकर्स हैं जैसे हैप्पी मोन जैकब हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो दो कॉन्ट्ररी थिंकर्स ले लो आप, जो एक फेवर में बोल रहे हो रिलेशन के और एक अगेंस्ट में बोल रहे हो, ठीक है। आप उनको थोड़ा डाल दो, है ना, तो थोड़ा आपका आंसर डायनेमिक हो जाएगा। और क्या है मैम, ऐसे को कैसे डील करें? आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सुधा तिवारी। वहाँ पे मैंने अपना ऐसे और अपनी पूरी ऐसे की स्ट्रैटेजी बताई हुई है, तो उससे सही होगा। साक्षी कुमारी AIR 330। और मैम प्लीज़ सजेस्ट गुड सोर्स फॉर प्री एंड मेंस ऑन यूट्यूब। आई एक्चुअली रिलाइड ऑन माई बुक्स फॉर एवरीथिंग, प्री और मेंस के लिए भी। मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखी नहीं हैं, बस मैं इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस होना पड़ता था तो रखना पड़ता था, तब मैंने कुछ वीडियोस जैसे स्टडी IQ की वीडियोस देखी थी और बायजूस की कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस अफेयर्स पे आती है वो देखी थी। तो ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो जिनको आप, मतलब आपको बेहतर जिनका समझ में आए। हाउ टू इम्प्रूव आंसर राइटिंग? ओके, आंसर राइटिंग के लिए सी यू हैव टू थिंग्स इम्पॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग। पहला होता है क्वालिटी कंटेंट। आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आप बार बार रिवाइज करो। आप AIR 1 जो टॉपर है इस बार, उनकी कॉपी देखो, शी हैज़ स्कोर्ड 932 इन मेंस इटसेल्फ। तो उनकी कॉपी देखने के बाद आप एनालाइज कर पाओगे कि उन्होंने बहुत सारे डायमेंशंस को कवर किया हुआ है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, और जो मैंने बताया कि मेंस के सिलेबस में ही आपके पास 11 डायमेंशन है। उन सब डायमेंशंस में सोचो और शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो मेंस में, ठीक है। फिर और क्या चीज़ें हैं, एथिक्स का कैसे करें? एथिक्स के लिए मैंने बोला केस स्टडी, टॉपर्स की कॉपी देखो, वो कैसे उसको अप्रोच करते हैं। बहुत सारे अप्रोचेस हैं, एक ही सेशन में सारी चीज़ें लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं इंश्योर करूँगी कि इन जो आपके क्वेश्चंस हैं इन पे वीडियोस बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती रहूँ। एंड व्हाट मोर इज़ देयर, मैम सभी GS में बैलेंस कैसे बनाएं? हाँ, इसके लिए आपको मंथली प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि देखो, अब मैं एक साल का पूरा प्लान बता देती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। जो पूरे साल की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो शुरुआत के 4 महीनों में आप चारों GS पेपर को बेसिक्स से करो, ठीक है। NCERT स्टार्ट करो, उनके रेफरेंस बुक्स पढ़ो, ठीक है। एक एक महीना आपने मान लो एक एक GS सब्जेक्ट को दे दिया, एक एक बार पढ़ ली। उसके बाद आप अगले 3-4 महीनों के लिए एक मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है मैं ये बताऊंगी कि आपको पहला जब आप टेस्ट लिखोगे ना, तो नहीं होगा कि आपने बहुत अच्छा टेस्ट लिख दिया एंड ऑल दैट। आपको इम्पॉर्टेंस उसकी ये है कि आपने जो नोट्स बनाए और आपने जो शुरुआती 4 महीने में GS की पढ़ाई की है, उसको आप बार बार रिवाइज़ कर पाएंगे जब आपको टेस्ट सीरीज़ लिखना होता है। और एक अच्छी बात ये भी होगी कि आप आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग डेवलप कर पाओगे और हर बार जब आपको फीडबैक्स मिलेंगे आप उन पे इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। और प्रीलिम्स के पहले करने का फ़ायदा भी ये होता है कि व्हेन यू क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने पहले किया हुआ है आंसर राइटिंग, इट्स नॉट दैट टफ़, है ना, जो मेरे साथ सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ था। मैंने बिल्कुल नहीं की थी, मुझे बहुत टफ़ लगा फिर आंसर राइटिंग करना और मेंस में मेरे मार्क्स कम रह गए, तो उसका चांस मत दो।
नेक्स्ट 4-5 मंथ्स जो आपको करना है वो सीसैट और जीएस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो आपने जो मेंस के पर्सपेक्टिव से एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप की है, अब उसको भी यूज़ करना है और फैक्ट्स को भी याद करना है, और उसके साथ आपको सीसैट भी लगाना है, ठीक है। तो एवरी टाइम थोड़ा अपना टाइम टेबल देखो, हर चीज़ स्पून फीडिंग के थ्रू मत मांगो। अपना टाइम टेबल तो यार एटलीस्ट आप बना सकते हो ना। यू पीपल आर in the age group of 21 and 25. It's just in India that we are considered kid, but in USA we would have been something much better, है ना। तो don't estimate yourself now as a kid. You are grown ups. तो थोड़ा अपना टाइम टेबल बनाना सीखो, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है वो सारी चीज़ें सीखो। और ये पूरी 1 साल की स्ट्रैटेजी हो गई। फिर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दो, मॉक टेस्ट उन 4-5 महीनों में सॉल्व करो, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दो, प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस की जो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उसका कंटिन्यूएशन होगा। और आप जो नोट्स बना चुके हैं जीएस का, वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करोगे फिर से 3-4 बार, बहुत बार, जब तक आपको बिल्कुल याद ना हो जाए। और फिर मेंस देना, मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा। फिर इंटरव्यू देना, इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाएगा। एंड देन यू कम टू द लिस्ट, और बहुत अच्छा लगता है। पीएसआईआर की कोई बुक मैंने फ़ॉलो नहीं की थी, मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स फॉलो किए थे, और मैंने ओनली आईएएस के भी नोट्स फॉलो किए हुए थे। सेक्शन बी के पेपर 2 सेक्शन बी के नोट्स उनके अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने करंट डेवलपमेंट से उसको अपडेट किया हुआ है। शुभ्रा मैम के नोट्स जो मार्केट में मिलेंगे वो अपडेटेड नहीं होंगे मे बी, ठीक है। चलो फिर, सी यू ऑल। जो भी क्वेश्चंस आपके और रह गए हैं आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर दो। साक्षी AIR 330 इज़ माई डीएम, और यू कैन डीएम मी ऑन दैट। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।